اس کا 10 باب اور اس کی 46 اور 52 آیت تک ہم دیکھیں گے. بھائی ایک ایک ورس کر کے پڑھیں گے. میرے اور آپ کے لیے زندہ پاکلام میں یوں لکھا ہے، اور وہ یرو میں آئے اور اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی، تو تمئی کا بیٹا برتلمئی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا تھا. زندہ کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ یرو کی راہ پر آتے ہیں تو ایک بہت بڑی بھیڑ ان کے ساتھ ہو لیتی ہے، اور ایک بہت بڑی بھیڑ ان کے استقبال کے لیے ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یرو کی راہ پر ایک تمئی کا بیٹا برتلمئی جو راہ کے کنارے بیٹھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. وہ سن تو سکتا ہے لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. اور آج خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم سب آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج ہم اس بات کا فرق دیکھیں گے کہ وہ برتلمئی جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس نے کیا کیا؟ اس نے خداوند یسوع کو کیسے پکارا اور اس کا ایمان کیسا تھا. اور آج ہم اپنے آپ پر غور کریں گے. اگر ہماری آنکھیں ہیں تو ہم خداوند کے ساتھ کیسے چلتے ہیں؟ اگر ہماری آنکھ آتے ہیں، ابھی بیٹی نے بڑی خوبصورت طریقے سے وہ گیت کو گایا کہ جب وہ عورت 12 برس میں ایک مرض میں قید تھی، ایک مرض میں مبتلا تھی، لیکن اس نے پہلے اپنے دل میں سوچا کہ میں خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوں گی تو میں اپنے مرض سے کیا ہو جاؤں گی؟ کیا جب ہم دعا پر آتے ہیں تو ہم کیا ذہن لے کر آتے ہیں؟ کیا کوئی اپنے دل میں منصوبہ رکھتے ہیں؟ کیا کوئی اپنے دل میں خواہش رکھ کر آتے ہیں کہ آج میں بھی خداوند سے باتیں کروں گی، آج میں خدا سے باتیں کروں گا، آج جب دعا کے لیے کہا جائے گا تو میں دعا کروں گی، جب پرستش کے لیے کہا جائے گا تو میں گیت گاؤں گی، میں تالیاں بجاؤں گی اور میں خداوند کی شکر گزاری کروں گی. بڑے مجمع میں اس نے اونچی اونچی چلانا شروع کر دیا تاکہ سب کیا کرے؟ میری آواز سنے، میری طرف متوجہ ہو اور میں خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچ جاؤں. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم دعا پر آتے ہیں، جب ہم گیت گاتے ہیں تو ہماری آواز دھیمی ہوتی ہے، ہماری آواز دبی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل سے نہیں دیکھتے مگر آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے ذہن سے سوچتے ہیں. جبکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا دل کو مانگتا ہے اور ہمارے دل میں آ کر رہنا چاہتا ہے. ہمارے دل میں اور باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم ذہنی طور پر اور دیکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی طرف، پاک مصباح کی طرف اپنی آنکھوں کو لگا لیتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اور خیال ہوتے ہیں. لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے دل سے خداوند یسوع کو دیکھا، اپنا پورا مکمل دھیان، اپنا خیال اور اپنا ایمان خداوند یسوع پر رکھ لیا اور چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع ناصری، مجھ پر رحم کر. تو کیا ہوتا ہے جب ہم خداوند یسوع کو پکاریں گے؟ کیا وہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہیں کبھی اکیلا، کبھی یتیم نہ چھوڑوں گا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا. کیا ہم بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں؟ ہم بھی ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیا خاندانی طور پر ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ کیا شام کو یا صبح کو اٹھ کر ہم اپنے بچوں کے ساتھ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، میرے گھرانے پر رحم کر، میرے بھائی بہنوں پر، میرے خاندان پر، میرے چرچ کی کلیسیا پر، میرے خادم پر، اے ابن داؤد رحم کر. ہمیں یہ باتیں یاد نہیں رہتی، جبکہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. اگر ہم برتلمئی کو دیکھیں تو اس نے خداوند یسوع مسیح کو پکارنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہیں کہ جب اس نے پکارنا شروع کر دیا تو اس کے لیے ایک مشکل کریٹ ہو گئی. وہ کیا ہوا؟ اور بتھیروں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر
वो और भी ज्यादा चलाया कि आए इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उसने चिल्लाना शुरू कर दिया तो बतेरों ने आकर उससे डांटा कि चुप रहे, और उसने क्या किया, वो चुप ना रहा बल्कि और ज्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। हम भी जब खुदा के साथ चलते हैं, जब हम कलाम पढ़ते हैं, जब हम विजिट पर जाते हैं, तो बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। जब हम दुआ पर आते हैं तो बहुत सारी रुकावटें हमें रोकने की कोशिश करती हैं कि आज हम खुदा के घर में ना जाएं, हम खुदा के कलाम को ना सुने, उस अच्छे पैगाम को, उस अच्छी बात मर्जी को ना सुने, और उस बात को जो खुदा आज मुझे कहना चाहता है, इब्लीस चाहता है कि मैं उसे ना सुनूं। इब्लीस मेरे लिए रुकावटें पैदा करता है। इसी तरह जब उसने खुदावंद यीशु को पुकारना शुरू कर दिया तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर उसके पास आए और उसे कहा कि चुप कर जा। सिर्फ चुप ही नहीं बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो उसे डांटने लगे कि हम तुम्हें कहते हैं कि चुप कर जा। जब उसने उन्हें डांटना शुरू किया लोगों ने, तो उसने क्या किया, वो चुप नहीं किया बल्कि और ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया। और मसीह में मेरे अजीजों हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी आवाज सुनी, खुदावंद यीशु मसीह तक उसकी आवाज पहुंची और उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ उसे मेरे पास बुला लो। और खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पर रुक गए और शागिर्दों ने आकर उसे एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने क्या बात कही, शागिर्दों ने क्या बात आकर कही थी उसे, खातिर जमा रखो। वेरी गुड। और इसका मतलब है कि अपने ईमान में मजबूत रहे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मालिक इब्ने दाऊद यीशु नासरी तुझे अपने पास बुलाता है। और हम क्या करते हैं, लेकिन जब खुदा के खादम या एल्डर्स या कलीसिया में से कोई एक दूसरे को इबादत के लिए कहता है, अच्छे काम के लिए कहता है, तो वो उस बात से अपसेट हो जाता है, अफसुदा हो जाता है कि इसने मेरे ऊपर ये बात खोल दी। अगर मैं बुरा काम करता हूँ तो उसने आके मुझे कहा कि भाई आप ये काम करते हैं, आपके लिए काम अच्छा नहीं, आप इस काम को छोड़ दें। क्योंकि मसीही जो लोग है, जो हमारा मसीही चाल चलन है, वो इस बात को जाहिर नहीं करता बल्कि हमारा अच्छा चाल चलन खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीही खुदावंद का था। आज हम गौर करें, क्या हमारा मिजाज वैसा है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह, उसे मारा जाता है, उसके ऊपर थूका जाता है, उसके ऊपर बातें कसी जाती है, लेकिन वो फिर भी उनके लिए दुआ करता है। यहाँ तक कि वो सलीब पर क्या फरमाता है कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और हमारे खुदावंद की मोहब्बत देखें, लेकिन आज हम इस मोहब्बत से खाली हैं। आज अगर हम इस मोहब्बत को अपने अंदर रखते हैं 30%, 40%, 50 तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब 50 हो जाती है इट्स मीन कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हम दूसरे को अपने से ज्यादा इज्जत देते हैं, हम दूसरे को अपने से ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब उसने चिल्लाना शुरू किया और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कदमों को रोक लिया और अपने शागिर्दों को कलहा भेजा कि जाओ इसे मेरे पास ले आओ। और शागिर्दों ने कहा कि खातिर जमा रख, ईमान में मजबूत रहे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तुझे। आज हम इस बात पर गौर करें, जब हम ईमान के साथ खुदावंद के हुजूर में आते हैं तो हमें खुदा का फरिश्ता टच करता है, खुदा का पाक रूह हमें टच करता है। अगर हमें टच करता है तो इट्स मीन कि खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी आवाज को सुन रहा है और वो कहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ईमान में मजबूत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर मुश्किल में, हर परेशानी में मैं तेरे साथ हूँ और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं तेरे दिल की आवाज को सुनता हूँ। आए हम भी अपने दिल की आवाज खुदावंद को पहुंचाए, ताकि खुदा आज जो यहाँ पर मौजूद है
क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं मैं उनके दरमियान में आए। इस बात के लिए एक जोरदार ताली बजाएं, खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद यहाँ पर जो मौजूद है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा तो अपने वादा के मुताबिक हमसे बोलता और हमसे बातें करता है। और हम देखते हैं कि जब वो खुदावंद यीशु मसीह अपने पास उसे बुलाता है, उसके बाद क्या होता है? वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। और हम देखते हैं कि वो अंधा फकीर जब राह के किनारे एक कपड़े को बिछा कर बैठा हुआ था, तो जो ही उसके शागिर्दों ने आकर कहा कि मालिक खुदावंद यीशु मसीह आपको बुलाते हैं, तो उसने क्या किया? उसने अपने कपड़े को उठा फेंका और वो उछल पड़ा और खुशी के साथ वो उछलता हुआ उस राह को हो लिया जहाँ उसके शागिर्द उसको लेकर जाना चाहते थे। ये जो कपड़ा हमारा हमें एक महदूद कर देता है। कपड़े का मतलब है कि वो हमें एक हद बंदी पर रख देता है, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह की आवाज उसके कानों पर पड़ती है, वो शागिर्दों का पैगाम सुनता है, उस कपड़े को, उस रिकाब को, उस दुनियादारी की ख्वाहिशात को, उस इब्लीस के मंसूबों को वो फेंक देता है और वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। हाँ जी, यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। अब हम देखते हैं कि पहले उसने चिल्लाना शुरू किया, उसने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया, उसे डांटा गया, लेकिन उसने फिर भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि इब्ने दाऊद, ऐ यीशु नासरी, मुझ पर रहम कर। खुदावंद यीशु ने उसकी आवाज को सुन लिया, अपने शागिर्दों को भेजा कि इसे मेरे पास ले आओ, और उन्होंने कहा कि बेटा खातिर जमा रख। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुंचता है, तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या कभी दुआ के दौरान, इबादत के दौरान हमने इस बात को फील किया है? हमने इस बात को महसूस किया है कि खुदावंद यीशु मसीह मुझसे पुकार रहे हैं और मुझे कह रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, बोल तू क्या चाहता है? और जब उससे ये पूछा गया तो उसने क्या जवाब दिया? अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। और उस अंधे फकीर ने, तमाई के बेटे बरतमाई ने कहा कि ऐ उस्ताद, ऐ रब्बूनी, ऐ रब्बू, मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं, मैं देखने लग जाऊं। आज हम गौर करें कि उसने बगैर आंखों के खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया, उसने बगैर आंखों के खुदावंद यीशु मसीह के लिए ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपने दिल की आंखों से खुदावंद को देख रहा था, खुदा के पाक रूह की हजूरी में खुदावंद के लिए पुकार रहा था। आज हम आंखें रखते हुए खुदा के कलाम को भूल जाते हैं, हम अपनी आंखों से खुदा के कलाम को ओझल कर देते हैं और अपने दिल से खुदावंद के कलाम को आने नहीं देते। क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मेरे खुदा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ तेरा गुनाह ना करूं। लेकिन आज हम गौर करें कि क्या खुदा का कलाम हमारे दिलों में है? क्या हमें 1 से 2 आयत जुबानी याद है? क्या हम कोई अगर हमसे सुन ले तो हमें 1 या 2 वर्ष, 1 या 2 आयत जुबानी आने चाहिए, तभी खुदा का जिंदा कलाम हमारे दिलों में होगा। क्योंकि कलाम में लिखा है कि आखिरी वक्त में ऐसा होगा कि कलाम मुकद्दस उठा लिया जाएगा। लोग मशरिक से मगरब तक कलाम को ढूंढेंगे, लेकिन कलाम ना पाएंगे। उस वक्त कौन सा कलाम हमारे काम आएगा? कौन सा कलाम हमारे काम आएगा? जो हमारे दिलों में होगा। और अगर हमारे दिल में कलाम ही नहीं, तो हम वहां पर भी जाकर क्या करेंगे? खामोश खड़े हो जाएंगे। तो क्या खुदा कहेगा, क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस मेरास को ले लो जो बनाइनो आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई थी? लेकिन वो मुबारक कहता है। और अगर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह एक भीड़ में कलाम कर रहे थे, तो किसी ने आकर कहा कि ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी, आपके बहन और भाई बाहर आए हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा?
मेरे बहन भाई वो है जो खुदा का कलाम सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं। तो जब कलाम नहीं सुनेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो हम खुदा के साथ हमारा कोई रिलेशनमेंट नहीं है, हमारा कोई रिश्ता खुदा के साथ नहीं है। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, इन आयात को संडे स्कूल के हवाला से अपने बच्चों के ज़हन नशीं करें। जब हमारे बच्चे कलाम की आयतों को, वर्सेस को पढ़ते हैं, तो हमें इस बात के लिए खुशी करना चाहिए और इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि हम मसीही लोग हैं। और उसने कहा कि ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी, मैं चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। क्या हमने खुदावंद यीशु से कहा है कि ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी, मैं चाहता हूं कि मैं तेरी खिदमत करूं। ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी तेरी खिदमत करे, मेरी बेटी तेरी प्रोसेस करे, मेरा बेटा खुदा के घर में जाकर प्रसादी करे, वो कलाम सुनाए, वो जाकर तबला बजाए, वो जाकर चर्च के कामों में हिस्सा ले। लेकिन हम उस संदे फकीर को देखें, वो चिल्लाता हुआ, कूदता हुआ, अपनी उस दुनियावी ख्वाहिशों को उसने उठाकर फेंक दिया और उसने कहा कि ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी, मैं चाहता हूं कि मैं दीना हो जाऊं। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? यीशु ने उससे कहा, जा, तेरी माँ ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलर फॉर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। क्या आज हम ईमान रखकर आए? अगर मुझ में कमी है, मेरे बेटे बेटियां मेरी बात नहीं मानते हैं, मैं इबादत से खारिज हूँ, या मैं खुदा की आवाज को नहीं सुनता, अगर मुझ में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो आज खुदावंद से हम भी कहें कि खुदावंद, मैं चाहता हूँ कि मेरी परेशानी दूर हो जाए। ऐ खुदावंद, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा तेरी खिदमत करे। ऐ खुदावंद, मैं चाहती हूँ कि मैं तेरी क्वायर के लिए, तो क्वायर के साथ मिलकर गीत गाऊं, मैं तेरी प्रस्तुति करूं। ऐ खुदावंद, मैं चाहती हूँ कि बाप, मेरे वालिदैन का साया हमेशा मेरे सर पर रहे। अगर ऐसा है तो हम उस अंधे फकीर को देखें। खुदा ने उसकी आवाज को, खुदा यीशु मसीह ने सुना और उससे कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और फील फॉर क्या हुआ? उसकी आंखों की बनाई बहाल हो गई और वो देखने लग गया। इसी तरह हम देखते हैं जब उस औरत ने खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छुआ और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ, और शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद, लोग आपको छूते हैं, लोग आप पर गिरते हैं क्योंकि वो अपनी बीमारियों से अच्छे होते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, मुझे किसी ने बड़े ईमान के साथ छुआ क्योंकि मैंने महसूस किया कि कुव्वत मुझसे खारिज हुई है। आज इसी तरह खुदावंद यीशु को छुए। आए हम सब आज खुदावंद यीशु मसीह को इस तरह पुकारे कि खुदावंद यीशु मसीह कहे कि आज मुझसे कुव्वत खारिज हुई और मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे ईमान के साथ छुआ है। और हम देखते हैं कि वो औरत छुप नहीं सकती थी, वो डरती हुई, कांपती हुई जब खुदावंद यीशु मसीह के सामने पेश होती है, तो वो कहती है कि जो ही मैंने आपकी पोशाक को छुआ, मेरा मर्ज खत्म हो गया, मेरी बीमारी जाती रही। मसीह में मेरे अजीजों, आज हम अपनी इन आंखों पर फख्र ना करें, आज हम खुदा के कलाम पर फख्र करें, खुदा के उन अजाइब कामों पर फख्र करें जो खुदा आज मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में करता है। और खुदा वो बरकत देना चाहता है जो उसने अपने नबियों को, अपने पैगंबरों को दी और कहा कि तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो। क्या हम आज ये खिदमत कर रहे हैं? हम किसी को जाके खुदावंद का शागिर्द बनाते हैं, खुदा का कलाम सुनाते हैं, अपने घरों में सुनाते हैं? अगर नहीं तो मसीह में मेरे अजीजों, हम आज तमाई के बेटे बरतमाई को देखें कि जिसने अपने दिल की आंखों से खुदावंद को पुकारा,
उसे डांटा गया, उसे चुप कराया गया, लेकिन उसने और ज्यादा चिल्लाना और उछलना शुरू कर दिया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। आज हमें दुआ के लिए कहा जाता है तो हमारी आवाज धीमी होती है, हमें लफ्ज नहीं मिलते, हमें बोलना क्या है, हम लफ्जों को तलाश करते हैं कि कौन सा लफ्ज बोले, लेकिन जब हम रूह के साथ दुआ करते हैं, खुदा का पाक रूह जब हमारी शिफायत करता है, तो जब हम बोलते हैं तो हमें पता नहीं होता, बल्कि हमारे मुंह से अल्फाज रवानगी के साथ निकलते हैं, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं बल्कि पाप का रूह है जो मुझ में फंसा हुआ है। मसीह में मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों को कमाल संजीदगी के साथ खुदावंद के हुजूर में पेश करें, ताकि खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हमारे ईमान को मजबूत करता है। आज हमारे लिए एक अंधे फकीर से बहुत अच्छा मैसेज मिलता है, जिसने अपने दिल की आंखों से खुदावंद यीशु को पहचान लिया। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे